Yes, we are live now. We can start. नमस्ते सभी को। आज की आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगी कि वो अपने माइक को म्यूट मोड पर रखें और साथ में आपके जो हमारा सेशन चलेगा उसके दौरान जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रश्न है, वो हमारे आज के मॉडरेटर श्री मधुसूदन जी के पर्सनल चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, ताकि जब भी हमारे स्पीकर अपना कंटेंट को कंप्लीट करेंगे तो वो क्वेश्चंस को वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सरस्वती वंदना से आरंभ करेंगे, तो सरस्वती वंदना के लिए सुधाकर जी से आग्रह करती हूँ। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस टॉपिक पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे आज के मॉडरेटर श्री मधुसूदन जी का परिचय आप सभी के समक्ष कराती हूँ। डॉक्टर मधुसूदन जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में आप NEHU शिलोंग और में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में जूनियर फेलो के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आपके एरिया ऑफ टीचिंग और रिसर्च इंटरेस्ट में डेमोग्राफी ऑफ स्कूलिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मूक्स और मूडल ये सभी शामिल हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन जी से आग्रह करती हूँ कि हमारी आगे के वेबिनार का संचालन करें। धन्यवाद Monica ji. Thank you so much for giving me a short about my short introduction, and without taking much time, let us go ahead with today's session. As you mentioned, the today's session is about credit-based system and academic bank of credit, which is one of the most important when we talk about quality of higher education. It's one of the most important, and as we all have seen, the NEP has given very straight suggestion in terms of revising these things, because when we talk about innovation, when we talk about being interdisciplinarity, being in terms of multidisciplinarity, all those things will be we can see the very tangible results for our efforts in this field. So to talk about this, हमारे बीच में है प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। Before we proceed, quickly let me introduce Professor Raghavendra P. Tiwari ji. Currently, sir is serving as Vice Chancellor to the Central University of Punjab.
Before joining Central University of Punjab, very recently he had a very successful tenure as Vice Chancellor at Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. Professor Raghavendra Tiwari ji, he comes from a geology background. He's a very renowned scientist in the field of geology with specializations in the field of paleontology, stratigraphy and seismology and GPS geology. Sir has been awarded with L. Ramarao Birth Centenary Award of the Geological Society of India in the year 2012, which is given in the recognition of the contribution in the field of the geology by the Indian Stratigraphy and Paleontology Society. Before joining whether it's Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya or the current position at Central University of Punjab, Professor Raghavendra Tiwari ji has served various universities in various capacities. If I have to mention, like for example, Sir was for long, he has been associated with the Mizoram University, which is also a central university, wherein he was a dean to a school, and he has been very well recognized in his field when it comes to whether it's a paper publication, scientific paper publications, or helping various research scholars completing their PhD positions and all. Sir has been very well successful academician in terms of his field as far as concerned. And as far as today's topic is concerned, we have with us to help us with regards to exactly what the policy talks about this. And the main part is the implementation challenges when we talk about credit-based system or academic bank of credits. So therefore, sir, without much spending time, so it's as our participants who are joined here in Zoom and those who are there watching live on Facebook, just for their benefit, I would like to repeat one small thing that Vidya Bharati Ucha Shiksha Samsthan, we have been, it has been an effort to bring in all the academicians from all over the country, and let us talk about the most important aspects that have been covered in the NEP 2020, especially focusing on implementation challenges. With this short note, I'll hand it over to the Professor Raghavendra P. Tiwari ji, who is a key speaker for today, and all the participants who have any questions may put in the chat box, either to me directly in the chat box. I will take up those questions in the end, because this main effort is about and answer. The effort is more about dialogue and debate. So whatever, because this is one of the most important, crucial topic when we talk about quality of higher education. With this short note, sir, I'll hand it over to Professor R.P. Tiwari ji, sir. Hello, Dr. Madhusudan, I am audible? Very much. Am I audible? Okay. Sir. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा समूह के एक अनुषांगिक संगठन, जिसको हम विद्या भारती के नाम से जानते हैं, और विद्या भारती ने अभी रिसेंटली हाई एजुकेशन में देश की सेवा करने के लिए निर्णय लिया है। ऐसे अनुषांगिक संगठन के द्वारा माई NEP, मेरी शिक्षा मेरा भारत के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आज के व्याख्यान का विषय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, डॉक्टर मधुसूदन जी और अन्य सभी विद्या भारती के सभी दायित्वमान कार्यकर्तागण, आप सबको पंजाब की पवित्र भूमि, जिसको 10 महान गुरुओं ने, जिसमें ज्ञान की गंगा बहाई, और जिस प्रांत को 5 नदियां अपने पवित्र जल से यहाँ के जीवन संचार को आगे और कल्चराइजेशन को, इस क्षेत्र के कल्चराइजेशन को, ह्यूमन कल्चराइजेशन को, सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे पवित्र भूमि से आप सबको नमस्कार।
uh, uh, since now it is the era of blended learning, therefore my language of deliberation will be blended. Sometimes I'll speak in Hindi, sometimes I'll speak in English. Of course, things which are to be explained for both types of audience, I'll use both the languages. Dr. Matsuda, if I remember correctly, the anchor told that you were sometime in Nehu. Yes, sir. And in fact, I joined Nehu. My initial services were in Nehu and in Mizoram campus, of course, and later on in 2001, Mizoram University. So we have that long, connection. So it was really good to hear that you served in Nehu for several years. Today's topic, this is CVCS and Academic Credit Bank. If we analyze the current education system of the country, what we can safely say is that it's a static one. It's not student centric. It is teacher and administration centric, and it has really failed to develop the global competencies in the youth of the country, and also it has failed to inspire the researchers, research scholars and scientists to do research which is really capable of creating wealth. Now, whatever, research we do, whatever system of learning we adopt, and whatever learning system we envisage to create in the nation, the ultimate goal is, number one, to create the wealth for the nation, to make it economically sound, and to take care of the large section of the population of the country, and then to develop moral values, ethical values, which are rooted in the culture of the nation. So with these two twin objectives have, are not met with the current system of education, current learning system. The learning system that our ancestors practiced for several centuries was replaced by Macaulay, and even the Macaulayan system was never updated, it was never made current, and it was never made relevant to the current need of the society, current need of the youth. So as a result, we produced large number of unemployment youth who cannot engage themselves in any meaningful economic activity. So, keeping this in view and the current need of the nation, current need of the society, Government of India worked nearly 5 to 6 years to bring out a type of policy which is current, which is relevant, and which is capable of developing global competition in the youth, and alongside life skills and also vocational training that the youth need to engage themselves to contribute for economic growth of the nation, to make the nation Atmanirbhar, self-reliant. So that is why this policy, NEP 2020, is called student-centric, rooted in the culture of Bharat, not India. So this NEP 2020 should be viewed in this, from this point of view. Although there are several new paradigms of far-reaching consequences, but today's deliberation is confined to choice-based credit system, and also very important and brand new idea for our nation, that is academic credit bank. Though in Western countries, it is happening in several countries. This is followed, and it is very much in practice. So, so my role is divided here into two. First, I have to discuss choice-based credit system, and then ACB. If we see, after independence, if we
if we map the trajectory of learning system and the growth in the learning system, and also the evolution that the learning system of India has undergone, Bharat has undergone, we find that not many changes have happened. The only changes that have happened here is first, annual system to semester system. And this was basically a sort of mechanical breaking down of annual system into semester system. So that was the first change that happened. And after that, maybe towards the end of the previous century or the beginning of current century, choice-based credit system was introduced. And, in the choice-based credit system, as we all know, that there are three types of courses, choice-based credit system. Choice, here two important things are choice and credit. Choice in terms of curricular aspect. When we are offering education to the youth, we should not say that this is the subject combination that we can offer you and you have to study only those subject combinations. Rather, it should be left to the learners to decide what are the subjects they want to learn, number one. And number two, other than the rigid curriculum framework, if students want to learn something extra, there was no provision. So, even though the choice-based credit system was introduced in the beginning of the current century in several universities, but it was not really the type of choices, the quantum of choices that we should be offering to the youth. This was not there. As we all know the structure of the format of CBCS, what we find is that we have, I'll take the example of PG program. Normally 80 to 90 credit, 80 credit is in social science, humanities and languages, and 90 credit in science disciplines. So nearly 50 credits is for 50 to 56 credits is confined to the core courses that students have to necessarily take those courses. There is no option there. Now, then there are two other types of courses available. One is major elective and the other one is minor elective. In major elective also, the options that are offered, I've seen syllabus of n number of universities. The maximum option that is given is 3. Out of 3, 1 has to be opted by the students. And this, in terms of weightage, this is normally not more than 60 credits out of 90 credits. So here also there is no cafeteria approach applied where we have the basket of courses and students have to pick from that. So this provision was not available. Then the minor elective, which are usually 8 credit course out of 90, there also the wide ranging options are not available. Therefore, in the entire choice-based credit system, we consider out of 90, around 65% is core course, which is fixed, so no choice. Then in another 20%, the choice is limited to 2 to 3 courses. Open elective also, it is, the combinations defined. Like the science student cannot opt open elective of social science, humanities, languages, and vice versa. Therefore, the type of choices that are required to be offered to the students is not available in the current choice-based credit system. Therefore, I say that it is not student-centric, rather it is teacher-centric and administration-centric. So this one, and likewise, there was no choice available in terms of course content. And also the evaluation, the examination, there is very rigid examination system, and whenever it is convenient for the administration to conduct examination, exams are conducted during that time. So,
there was no choice broadly available in terms of curricular framework, in terms of our course content, in terms of pedagogy. You know, pedagogy is also why I say that current education system is teacher centric, because teacher will teach the way he or she can teach. But this is not at all the ideal situation. You know, any education institute cannot grow, and the youth of any nation cannot learn if teachers will teach the way he or she is capable of teaching. Rather, the scenario should be that students should be taught in the way they can learn. And we all know that the learning capacity of all students is not same. Some students learn in X manner, some students learn in Y manner. For example, some students can learn very nicely if they are explained the concept with diagram, with flow charts, with graphs, etc. Then some students can learn when they discuss in the group. Some students can learn when they ask questions and answers. Some students can learn when they are involved in disputation and debates. So, you know, there are several types of pedagogies now available. So, the pedagogy has to suit the requirement of the students. So, this was not happening. Therefore, it is basically, you know, very little choice that is available to the students in the current format of learning system that we practice in Bharat, in India. Now, coming to now NEP 2020, why it is student centric and why it is can develop the global competition in the youth is it offers choices in almost all 4 to 5 aspects of education. You know, if we say what the essence of education is, the essence of education is that number 1, what to teach, number 2, how to teach, number 3, whom to teach, number 4, why to teach, and number 5 is that where to teach. These things are very important these questions are very important in the educational learning system of any country. So, you know, all these issues are addressed in NEP 2020. Like, you know, the type of curricular, you know, flexibility that this NEP 2020 offers, the choices in terms of curriculum, this NEP 2020 offers, it is really wide ranging. Now there will not be limitation of subject combinations. Science subjects can be combined with social sciences, humanities and languages and vice versa. And alongside, you know, these conventional, applied and professional disciplines, there is provision for vocalization, you know, vocational education, not only in the higher education, but also right from the scale education. There is integration of vocational education with the traditional education. In higher education also, there is integration of open learning system with the conventional education, and also, you know, the new format of education is emerging, and that is for those who are employed. And, you know, they can remain employed, but if they want to enhance their skill, if they want to enhance their understanding level, they can pursue some programs will be available. So it also ensures lifelong learning, which is the essence of Bharatiya culture. We always believed in lifelong learning. Now, so this is the type of curricular, you know, option choices that are available to the students. Number 2, coming to you know, the course content. You know, I will correlate it with the provisions available in NEP 2020 so that it becomes practical. It looks practical, and it is it interests also the listeners to listen to me attentively. You know, now we all know that this NEP 2020 stipulates
the creation of one umbrella organization, umbrella regulator, what we call it Higher Education Commission of India. And under this umbrella regulator, there will be 4 verticals. One vertical will be responsible for making regulations and enforcing those regulations. Number 1. Now another regulation will be responsible, another vertical will be responsible for accreditation of higher education institutions. Third vertical will be responsible for providing grants. This is called grant council. The other one is called regulatory council. Second one is called accreditation council. Third one is grant council. And the fourth one is general education council. Why I am referring to general education council is, in my opinion, general education council is the soul of NEP 2020. Let me say why it is so, why I call it soul of NEP 2020. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आत्मा है। मैं इसलिए आत्मा बोलता हूँ कि आप जो जिस तरह की चॉइसेस हम पाश्चात्य देश अपने युवाओं को दे रहे हैं और उसी के चलते हमारे यहाँ के युवा बाहर पढ़ने के लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं, वो इस GEC का काम है यहाँ पर हमारे लर्निंग सिस्टम में उन सभी एट्रीब्यूट्स को, उन सभी चॉइसेस को स्टेब्लिश करना। और मैं तो ये बोलूँगा कि उनको री-इस्टेब्लिश करना, क्योंकि हमारे गुरुकुल सिस्टम में ये सभी चीज़ें मौजूद थी, स्केलिंग अप नहीं थी और उसके बारे में आज हमारी युवाओं को जानकारी नहीं है। अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर और फिर आगे जो बात आएगी उसमें आप देखेंगे कि ये सभी प्रोविजंस हमारे गुरुकुलों में मौजूद थे और इन सब का उपयोग और प्रयोग दोनों होता था पठन पाठन और शोध के कार्य में। तो जनरल एजुकेशन काउंसिल का जो पहला मैंडेट है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना। इसको विदेशों में हम बोलते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। आज आप विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी की, अच्छी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ जितने भी प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, सभी प्रोग्राम्स का ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि यदि MSc बॉटनी कोई हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है तो उसको प्रोग्राम को करने के बाद विद्यार्थियों में कितनी उस विषय के प्रति समझ पैदा होगी, उसमें उस विषय से संबंधित कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट होंगे, उस विषय से संबंधित वो कैसे एंटरप्राइजर बन सकता है, कैसे इनोवेटिव बन सकता है, कैसे नए नॉलेज को क्रिएट कर सकता है और कैसे वो जो नॉलेज क्रिएट करेगा या रिसीव करेगा उसको समाज हित में और देश हित में कैसे लगा सकता है। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को हम अपने यहाँ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो पहले लर्निंग आउटकम डिफाइन करना पड़ेगा कि हम जितने भी तरह के प्रोग्राम, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हों, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हों, चाहे वोकेशनल कोर्सेज हों, या कि स्किल डेवलपमेंट बेस्ड कोर्सेज हों, या कि क्वालिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज हों, या कि वैल्यू बेस्ड कोर्सेज हों, इन सब को पढ़ने के बाद, परस्यू करने के बाद विद्यार्थी में किस तरह के एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे, क्या लक्षण डेवलप होंगे, क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान को वो कैसे समाज उपयोग में लगा सकता है, ये डिफाइन करने का काम जनरल एजुकेशन काउंसिल का है। अब ये चॉइस बेस्ड सिस्टम में कैसे रिलेवेंट है? ये ऐसे रिलेवेंट है कि अभी तक जो हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम्स की चॉइस करते हैं, जो भी कोर्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो, जो भी पढ़ने के लिए वो डिसीजन लेते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ हमारे स्टूडेंट्स डिसीजन लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस के बेस पर, अनइन्फॉर्म्ड
उनकी चॉइसेस होती है, उनकी अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं। क्योंकि जब हर एक प्रोग्राम का महत्व ही नहीं बताएगा विश्वविद्यालय जो ऑफर कर रहा है उस प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम यदि कोई स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा से कोई प्रोग्राम कर रहा है तो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद उसमें कितनी स्किल डेवलप होगी, कितनी अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्या क्या सीखेगा वो, तो वो यदि एमएससी बॉटनी यदि बठिंडा से करेगा या कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से करेगा या आईआईटी बॉम्बे से करेगा, इसके लिए उसको उस कोर्स के क्या क्या लर्निंग आउटकम्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या डिफाइन करते हैं, जब तक उसे ये नहीं मालूम होगा, ये चॉइस उसको उपलब्ध नहीं होगी, तो उसको वो सही डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे स्टूडेंट्स की जो चॉइस है उसको सेकुलर बनाता है, उसको वो उनके आधार पर उनको सही चॉइस करने में, प्रोग्राम के चॉइस करने में, कोर्स के चॉइस करने में ये मदद करता है। इसलिए एनईपी स्टूडेंट सेंट्रिक हो गई, कोर्स सिलेक्शन से लेकर स्टूडेंट सेंट्रिक की शुरुआत होती है। फिर आप देखेंगे कि जब कोर्स हमारा वो बन गया, लर्निंग आउटकम बन गया, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बन गया, तो उस स्किल्स को विद्यार्थियों में डेवलप करने के लिए हमारे किस तरह कोर्स कंटेंट चाहिए, ये भी जरूरी है। मिसमैच नहीं होना चाहिए कि हम लर्निंग आउटकम कुछ बता रहे हैं कि विद्यार्थी ये सीख पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, अब वो कोर्स कंटेंट में है ही नहीं है। तो परफेक्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इसमें भी कोर्स करने का, हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जब हम इसमें जाएंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाएंगे तब इसका महत्व समझ में आएगा कि कोर्स कंटेंट कितना जरूरी है चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए। यदि हम चॉइस बेस्ड सिस्टम बोलते हैं तो हमें शिक्षा के लर्निंग सिस्टम के हर एक एस्पेक्ट में हमें चॉइस देनी पड़ेगी विद्यार्थियों को, और यही मकसद है, यही इरादा है हमारे इसका एनईपी 2020 का। ये सब चॉइसेस हर एक पांचों एस्पेक्ट्स में ये विद्यार्थियों को फुल चॉइस देती है। तो ये कोर्स कंटेंट हो गया। अब कोर्स कंटेंट तो हो गया, लेकिन तीसरा जो एस्पेक्ट है लर्निंग सिस्टम का वो है पेडागॉगी। और ये कोर्स कंटेंट भी बाय एंड लार्ज जनरल एजुकेशन काउंसिल डिसाइड करेगी। फ्रीडम होगा इंस्टीट्यूशंस को चेंज करने के लिए, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने करीब 25 विषयों में लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बना करके अपनी साइट में अपलोड किया हुआ है। तो ये एक हमारे भारत सरकार की ये भी तैयारी है कि बहुत सारी न्यू पैराडाइम्स जो रिफॉर्म्स एनईपी 2020 में है, उसमें से कई सारे अवयवों में काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2-3 वर्ष से ही शुरू कर दिया, पहले से तैयारी इसकी शुरू हो गई है, दोनों साथ साथ चल रही थी। तो जो पेडागॉगी की जब हम बात करते हैं तो पेडागॉगिकल फ्रीडम जो हमारे गुरुकुलों में जिस तरह की पेडागॉगी होती थी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि हर एक विद्यार्थी का क्लास में जो उसका एक सीखने का एक स्वभाव होता है, उसकी सीखने की मनोवृत्ति होती है, उसकी सीखने की चिति होती है, और इसी को पहचानना शिक्षक का काम है, और उसके हिसाब से उसके तरीके से विद्यार्थी को सिखाना शिक्षक का काम है। ये हमारे गुरुकुलों में होता था। हम कहीं गुरुकुल के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी, ये पेडागॉगी की भी चॉइस, हम चॉइस की बात कर रहे हैं, पेडागॉगिकल चॉइस। पेडागॉगिकल चॉइस में जिस तरह से विद्यार्थी पढ़ना चाहे, उसकी एक क्षमता है, एक निश्चित विधि से वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो यदि हम एक ही विधि से सिखाएंगे, जैसा अभी हो रहा है मोनोलॉग, टीचर आता है 1 घंटे बोलता है, विद्यार्थी केवल सुनता है, जिसको हम पैसिव लर्निंग कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं, इस तरीके की पढ़ाई हमारे देश में चल रही है। तो इसको ये एनईपी 2020 रिप्लेस करती है। इसमें बहुत सारे पेडागॉगिकल रिफॉर्म्स, नए पेडागॉगीज का प्रोविजन हमारे एनईपी 2020 में है, जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसमें हर एक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार से हमें पेडागॉजी टीचर्स को अपनानी पड़ेगी। टीचर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और विद्यार्थी जिस तरह से शिक्षक पढ़ा सकता है उस तरह से काम नहीं चलेगा। एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने में, उसको इम्प्लीमेंटेड करने में विद्यार्थी जिस तरीके से पढ़ना चाहेगा उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी एनईपी 2020 में बहुत बड़ा प्रोविजन है कि जो पेडागॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, पढ़ाने की पद्धति में जो सुधार इसमें किए गए हैं, उन सभी सुधारों को सभी शिक्षक अपना सके, उसको आत्मसात कर सके, उन पढ़ाने की विधियों को अप्लाई कर सके, उनका उपयोग करते हुए युवाओं को लाभ दे। इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग का भी अलग से प्रोविजन हमारे एनईपी 2020 में है। इसलिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो इनबिल्ट है एनईपी 2020 में, वहीं से हमें निकालना है। सब प्रोविजन उपलब्ध है, घबराने की बात नहीं है इसमें कि इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा। तो ये पेडागॉजिकल रिफॉर्म्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे गुरुकुलों में होती थी, हर एक कंसेप्ट को उसको करा करके सिखाया जाता था, तो उसको थ्योरेटिकल नहीं बताया जाता था कि ऐसा ऐसा पेड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं था कि ऐसा करो ऐसा करो, तैरना उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, कारपेंटरी करनी है तो उसके लिए थ्योरी क्लास नहीं चलती थी, सीधे बनाओ, मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो होता था, कपड़ा धोने के लिए, प्रेस करने के लिए, गाने के लिए कोई थ्योरी क्लास नहीं चलती थी। अभी भी म्यूजिक का जो कोर्स है उसमें हमारे यहाँ म्यूजिक का कोर्स जिसमें पूरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी उसमें भी थ्योरेटिकल में उसको पढ़ाया जाता है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो प्रोग्राम हमारी एनईपी 2020 में वो फैंटास्टिक है। उससे जो पैराडाइम शिफ्ट हमारे लर्निंग सिस्टम में होने वाला है, उससे हमारी युवाओं में स्किल डेवलपमेंट होगा, उसमें विद्यार्थी हमारे कोर्स कंटेंट को ठीक से समझ पाएंगे, उसको आत्मसात कर पाएंगे और जो लर्निंग सिस्टम जो हाईएस्ट लेवल का लर्निंग वो है वहां तक हमारे विद्यार्थी पहुंचेंगे। तो इस तरह के पेडागॉजिकल रिफॉर्म्स, फ्लिप लर्निंग जैसा होता था कि विद्यार्थी को पढ़ने का मटेरियल दे दिया, वो घर से पढ़ के आएगा, क्लासरूम में केवल डिस्कशन होगा। इस पद्धति से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है वो मिटिगेट होगा। हम कहीं भी बैठ करके पढ़ा सकते हैं। गुरुकुलों में हम प्राचीन काल में कोई हमें एसी का क्लासरूम हमारे पूर्वजों को नहीं मिलता था, गुरुओं को नहीं मिलता था, जहाँ बैठ के वहाँ पढ़ाते थे, विद्यार्थी हमारे जहाँ वहाँ पढ़ाते थे। अभी एक इकोनॉमिक्स में एक नया कंसेप्ट बना करके लोग भेज रहे हैं कि नया कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म। थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म में कम से कम में काम चलाना, तो कम से कम काम चलाना जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये तो हमारी कोर स्ट्रेंथ है। हम तो कम से कम में ही काम चलाए हैं। अभी 15-20-25 साल से हमारे वार्डरोब में 20-25 ड्रेस कपड़े पहनने रखे होते हैं, पहले तो एक ही ड्रेस होता था। तो मिनिमलिज्म कोई हमारे लिए नया कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए शिक्षा में जो भी रिफॉर्म्स एनईपी 2020 में है, हमारे लिए कोई नए रिफॉर्म्स नहीं है। हमारे यहाँ ये सब होता ही था, गुरुकुलों में होता था, उसको रीएस्टेब्लिश करना है, उसको रिकैपुलेट करना है। और जिस तन्मयता के साथ, जिस समर्पण के साथ गुरुकुलों में गुरु पढ़ाते थे, उस समर्पण को हम शिक्षकों को आत्मसात करना है। एनईपी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये पेडागॉजी की बात हुई। अब आप देखें कि इवैल्यूएशन, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जो इवैल्यूएशन की चॉइस जो उपलब्ध होनी चाहिए वो अभी नहीं है। फिक्स्ड पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का फिक्स्ड पैटर्न है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, फिक्स्ड टाइम है, उसी टाइम में परीक्षा होगी। गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता था, एक समय एडमिशन नहीं होते थे और एक समय में शिक्षकों को डिग्री देकर, विद्यार्थियों को डिग्री देकर के गुरुकुल छोड़ने को नहीं बोला जाता। कभी भी एडमिशन होते थे और जब शिक्षक को लगता था कि अब विद्यार्थी परिपक्व हो गया है तो वो गुरुकुल से जा सकता, और वो टीचर के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता था। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, कोई टाइम बाउंड परीक्षा नहीं होती, तो वो सब शिक्षक पर डिपेंड करता था। उस तरह की चॉइस हमारा एनईपी 2020 हमारे विद्यार्थियों को दे रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम एकेडमिक क्रेडिट बैंक पर आएंगे। तो ये चारों जो चीजें हैं जिसका दायित्व जनरल एजुकेशन काउंसिल को है, वो इन सब चीजों को लागू करेगी। जो जितने तरह के करिकुलर फ्रेमवर्क में जो चॉइसेस विद्यार्थियों को चाहिए, कोर्स कंटेंट में जो चॉइसेस चाहिए, पेडागॉजी में जो चॉइस चाहिए और इवैल्यूएशन सिस्टम में जो चॉइस चाहिए,
इन चारों में चॉइस प्रोवाइड करने का, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल, इसका फ्रेमवर्क बनाने का काम जनरल एजुकेशन काउंसिल का है। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है एनईपी 2020 में। तो ये इसलिए जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है विद्यार्थियों को चॉइस देने में सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं इसको एनईपी 2020 की आत्मा कहता हूं। अब ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात हो गई। हालांकि चॉइस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो कंटिन्यूअस असेसमेंट की जो बात है, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो जिसको 3-4 टुकड़ों में, एग्जामिनेशन को 3-4 टुकड़ों में बांट दिया गया है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि विद्यार्थी कंटेंट को पढ़ने के बाद यदि हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की सीख को लें, उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी 3 तरीके से सीखता है। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, और तीसरा है निधि ध्यासन। श्रवण हम सबको मालूम है, मनन जो सुना है उसको मनन करे, उसके रहस्य को जाने, उस कंटेंट को समझे, उसको एनालाइज करे, उसको सिंथेसाइज करे, ये हो गया मनन। निधि ध्यासन में जो सिंथेसाइज किया है उससे फ्रूटफुल इन्फेरेंस ड्रा करे और उसको स्वयं पर उपयोग करे, और उपयोग करने के बाद देखे कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या, जिसको हम कटनी छटनी बोलते हैं, इसकी ड्रेसिंग कैसे की जाए, और एप्लीकेशन पोटेंशियल को, इसकी एप्लीकेशन को, इसकी उसको एप्लीकेशन की उपयोगिता को और कैसे बढ़ाया जाए, और उसको समाज हित में कैसे लगाया जाए, ये होता था निधि ध्यान। ये है लर्निंग सिस्टम का निचोड़, श्रवण, मनन और निधि ध्यान। इसी को आधार बनाते हुए ब्लूम्स ने 1952 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 6, जिसमें उसने 6 लेवल ऑफ लर्निंग को डिफाइन किया है, वो बेसिकली इसी को आधार बना करके उसने किया। अब वो नए कंसेप्ट के रूप में हमारे देश में पुनः वापस आ रहा है। हम अब एजुकेशन विभाग का जो शिक्षक है उनसे ज़्यादातर बात करोगे, उसको बोलोगे कि सबसे बड़ा लर्निंग सिस्टम क्या है, लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ब्लूम को बताएंगे, जो कि ये सब हमारे गुरुकुलों में होता था। हमारे यहाँ जो 6 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में है, जो ऑप्शंस हैं, वो क्षेत्र के गुरु ही हमारे यहाँ होते थे। तो इतना हमारा एडवांस सिस्टम था। तो ये इस तरीके से, तो ये जो निधि ध्यान करने के लिए जो उपयुक्त समय चाहिए, वो एक ड्रॉबैक है कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट का, कि उसमें विद्यार्थी निधि ध्यान कर पाए। तीसरे स्टेज तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, वहां तक पहुंचे, उसके पहले उसको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो ये एक समस्या की बात है। बट एनीवे, चूंकि इसके बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट हैं, तो इसलिए इसको किसी भी तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। अब हम आते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एक डिजिटल कंसेप्ट है, और इसमें जैसे बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से हर एक विद्यार्थी अपना अकाउंट खोल सकता है। अब हम आएंगे कि इसके ये कैसे होगा, कैसे, क्यों ये आवश्यक है, नंबर 1, और नंबर 2, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को जिस तरह की चॉइस चाहिए आज के ज़माने में, उस तरह की सभी तरह की चॉइस चाहिए। अब हम देखें कि यदि हम एकेडमिक क्रेडिट बैंक को नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एमएससी में, किसी भी विषय में एमएससी में जो हम ऑफर करते हैं, उसमें यदि कोई विद्यार्थी इनरोल होता है, तो हम उसके अंदर जो कोर्सेज 16 कोर्सेज जो हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसी को विद्यार्थी पढ़ सकता है। नंबर 1, जो हमारे यहाँ टीचर हैं जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ सकता है। हम जिस मेथड से, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, वही उसको पढ़ना पड़ेगा।
जिस मेथड से पढ़ाना हम पढ़ा सकते हैं हमारे टीचर, उसी मेथड से पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम एग्जाम सिस्टम है हमारा, उसी तरीके से उसको परीक्षा देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। अब एकेडमिक क्रेडिट बैंक ये चॉइस कैसे उपलब्ध कराता है? वो ऐसे कराता है कि मान लीजिए कि कोई हमारे यहाँ विद्यार्थी है, वो हमारा जो पीजी प्रोग्राम है एमएससी का, एमएससी, एमए, एमकॉम, एलएलएम और व्हाटएवर, ये आइडियली जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं वो 90 क्रेडिट का है। बाय द वे मैं क्रेडिट को डिफाइन कर दूं, आप सबको मालूम होगा, लेकिन पुनः बोल देता हूं क्योंकि क्रेडिट को हम बार बार बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब ये है कि यदि कोई कोर्स 1 क्रेडिट का है, इसका मतलब कि 1 सप्ताह में उसको 1 घंटे उस कोर्स को पढ़ना पड़ेगा। यदि 2 क्रेडिट का है तो 1 सप्ताह में 2 घंटे, 3 क्रेडिट का है तो 3 घंटे। तो क्रेडिट की डिफिनेशन ऐसे होती है। अब हम उस पे आए कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्यों, कैसे ये 4 तरह के ऑप्शंस देता है। तो यदि हमारा पीजी प्रोग्राम 90 क्रेडिट का है, हमारे यहाँ स्टूडेंट, यदि ये लागू हो जाता है, लागू होना ही है, यदि की कोई बात नहीं है, तो यदि एकेडमिक क्रेडिट बैंक लागू हो जाता है तो इसमें स्टूडेंट को किसी एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। जैसे एलएलएम प्रोग्राम हमारे यहाँ कोई विद्यार्थी इनरोल कर लिया, प्रोग्राम में उसका इनरोलमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में होगा। अब इसमें अभी विचार चल रहा है, कोई फाइनल नहीं हुआ है, कि हम ये निश्चित करने वाले हैं कि इस प्रोग्राम में यदि 90 क्रेडिट का है तो कम से कम 50 क्रेडिट का कोर्स उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से करना पड़ेगा। और ये हम उदाहरण दिए हैं, अभी इसमें कोई परसेंटेज फिक्स नहीं हुआ, लेकिन 40 जो बाकी जो 40 क्रेडिट है वो हमारे यहाँ का विद्यार्थी लॉ में या कोई स्कूल बैंगलोर में, नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद में, कहीं भी यदि हमारा विद्यार्थी कोर्स करना चाहे तो वो बाकी क्रेडिट वो कहीं से भी ले सकता है। फिर इसमें क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोविजन होगा। पेरेंट यूनिवर्सिटी में वो वहां यदि मान लीजिए कि साइबर लॉ का कोई कोर्स सेंट्रल नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में चल रहा है तो हमारे यहाँ का विद्यार्थी ऑनलाइन उस कोर्स को कर सकता है। यदि वो 4 क्रेडिट का कोर्स है तो वहां से क्रेडिट ट्रांसफर हमारे यहाँ होगा। हम उसको डिजिटल फॉर्म में, हम नहीं, एक बॉडी बनने वाली है जो इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक को, जो डिजिटल एंटिटी है, इस फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये डिजिटल एंटिटी है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए कोई संगठन बनेगा, ये भी उसमें प्रोविजन है। तो वो वैलिडेट करेगा क्रेडिट को और विद्यार्थी के अकाउंट में उस क्रेडिट को जमा करेगा। अब देखिए कि ये हर एक तरह की चॉइस विद्यार्थी को दे रहा है। यदि ये नहीं है तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो कोर्सेज है वही विद्यार्थी को करना पड़ेगा। यदि है तो हमारा विद्यार्थी कहीं से भी 40 क्रेडिट मान लीजिए कहीं से भी अर्न कर सकता है। उसमें से एक कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, दूसरा कोर्स किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर सकता है, तीसरा किसी चौथे यूनिवर्सिटी से कर सकता है। तो इस तरीके से उसको कोर्स का ऑप्शन मिल गया, और जब कोर्स का ऑप्शन मिल गया तो उसको पढ़ने का भी, दूसरे टीचर से भी पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट के वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ की पढ़ाई पेडागॉजी क्या अप्लाई हो रही है, और फिर इवेल्युएशन भी वही होगा, तो वहाँ का इवेल्युएशन टूल्स क्या है जो हमारे यहाँ से डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से चारों तरह के ऑप्शंस जो चाहिए वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक इंश्योर करता है। तो ऑनलाइन certain percentage of credit in every program can be earned from other institutions through online mode. ये है एकेडमिक क्रेडिट बैंक, और ये बैंक हर एक का अकाउंट होगा, डिजिटल अकाउंट, उसमें क्रेडिट वो होगा। अब आप देखिए इसकी कितनी बढ़िया ब्यूटी है। इसमें ये भी हो सकता है कि 90 क्रेडिट है, 90 क्रेडिट का कोर्स हमें 4 सेमेस्टर में करना है ट्रेडिशनल वे में। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी उसको 3 सेमेस्टर में 90 क्रेडिट अर्न कर लेता है इस तरीके से,
तो व्हाई शुड ही नॉट बी अलाउड टू वॉक अवे विद द डिग्री? अभी देखिए कि हम जो अभी प्रोविजन है एमएससी का, पीजी का, कि 4 सेमेस्टर 2 साल इतना पढ़ना पड़ेगा, आवश्यक है। और इसके बाद +1, यदि 2 साल में 4 सेमेस्टर में कोई नहीं कर पाया तो 1 साल और ले ले एक्स्ट्रा। तो 1 साल ये एक्स्ट्रा किसके लिए है? दिस फॉर स्लो लर्नर्स। जो नहीं कर सकता वो स्लो लर्नर्स हुआ, या कि किसी दूसरी वजह से वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसके लिए हुआ वो एक्स्ट्रा प्रोविजन 1 साल का। तो फास्ट लर्नर्स के लिए क्यों फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए? यदि 2 साल का है तो भाई उसको आप 1 साल करो, 1.5 साल करो, कुछ तो कम करो फास्ट लर्नर के लिए। तो ये भी प्रोविजन इसमें हो सकता है। तो जो पेस ऑफ लर्निंग जो डिफरेंट है स्टूडेंट्स की, किसी की फास्ट है, किसी की स्लो है, किसी की एवरेज है, तो सभी तरह के स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट को यह ऑप्शन दे रहा है। कोई लेट करना चाहे लेट कर ले, कोई 2 साल में करना चाहे 2 साल कर ले, कोई 2 साल से कम में करना चाहे, जिसकी कैपेबिलिटी है वो 2 साल से कम में भी कर ले। तो एक इसका लाभ ये है। तो उसको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में उसको पढ़ने का ऑप्शन होगा, मल्टीपल वे में उसको इवेल्युएशन से अंडरगो होना पड़ेगा, और मल्टीपल कोर्सेज, कहीं का जो बेस्ट कोर्स है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी प्रोग्राम का बेस्ट कोर्स जिस इंस्टीट्यूट जो ऑफर कर रहा है, अब वो कैसे स्टूडेंट जज करेगा? वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, लर्निंग आउटकम बेस्ड, जो लर्निंग आउटकम डिफाइन हो गए कोर्स वाइज, प्रोग्राम वाइज, वहां से स्टूडेंट पिकअप करके देखेगा कि कहाँ का बेस्ट है, किस इंस्टीट्यूशन का। मिनिमम जहां प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट उसको एक इंस्टीट्यूशन में कराना पड़ेगा, लेकिन कोर्स में इन्वॉल्वमेंट वो कई सारे इंस्टीट्यूशन में करा सकता है। यही एकेडमिक क्रेडिट बैंक की विशेषता है। इतनी ज्यादा फ्रीडम, इतनी ज्यादा चॉइसेस, ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक। अब हम लोग बोलते हैं कि नया कंसेप्ट है, ब्रांड न्यू कंसेप्ट है। विदेशों में ये 15 साल से चल रहा है, 20 साल से, सिंस द डाउन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी ये सिस्टम, एकेडमिक ब्रांडिंग का सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ पहली बार होने जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम गुरुकुल की बात देखें, मुझे याद आता है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि यदि कोई विद्यार्थी एक गुरुकुल में कि कोई एक चीज से एक वेद सीखना है, जिसको सबसे एक गुरुकुल कोई नालंदा सबसे बढ़िया सिखाता है, वहां पढ़ेगा। यदि दूसरा वेद उसको पढ़ना है जो सबसे बढ़िया नालंदा में पढ़ाया नहीं जाता, वो तक्षशिला में जाके पढ़ता था, और उसके गुरु जहां वो इन्रोलमेंट करता था, जहां एडमिशन लेता था, एडमिशन फॉर्मल नहीं होता था, वहां पर उसको वो गुरु बताता था कि देखो तुमको, यदि वो विद्यार्थियों में जिज्ञासा होती थी, शिष्य वो पूछता था कि गुरु मुझे ये भी पढ़ना है, गुरु जी बताइए यहाँ पढ़े कि कहाँ पढ़े, कहाँ सबसे बढ़िया मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो वो रेफर करता था दूसरे गुरु, वहां जाके पढ़ो, और वहां पढ़ने के बाद वो वापस लौट के आता था, गुरु उसको बताते थे कि हाँ आपका शिष्य सीख गया है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। तो ये था हमारा एकेडमिक क्रेडिट बैंक। और क्रेडिट ट्रांसफर, ये क्रेडिट ट्रांसफर है कि एक दूसरे, एक जहाँ इनरोल है ये गुरु, फिर वो जहाँ इनरोल है, जहाँ उसका जो ओरिजिनल गुरुकुल है, उसका गुरु जब बोलेगा कि हाँ तुम परिपक्व हो गए जाओ, तब हो जाएगा। लेकिन वो कुछ कोच वो दूसरे गुरुकुलों से करके आता था। तो क्रेडिट ट्रांसफर, और ये जो हम ये बोल रहे हैं, ये प्रोविजन हमारे यहाँ गुरुकुलों में ऑलरेडी था। स्केलिंग अप नहीं थी, बहुत ज्यादा मैसिव स्केल में नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। जो सीखना चाहता था वही सीखता था, तो अभी भी वही है। जो पढ़ना, जो सीखना चाहेगा, दूसरे इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट अर्न करना चाहेगा, वही करेगा। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम जो है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें क्रेडिट ट्रांसफर जो होने जा रहा है, क्रेडिट ट्रांसफर की मैकेनिज्म, और इसके साथ साथ इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो डिजिटल एंटिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, काफ़ी कुछ बंद हो गए हैं। अभी हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 9 एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, और एक्सपर्ट ग्रुप काम कर रहा है, वो कंसल्टेशन भी कर रहा है, ओपिनियंस भी लोगों को ले रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, और इसमें बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के माननीय मंत्री जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन, और सभी लोग, AICT के चेयरमैन, अन्य लोग जो दायित्ववान लोग हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराने का जिसके ऊपर दायित्व है,
वो सब इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं और सभी का दृढ़ निश्चय है कि हम NEP 2020 को लागू करेंगे। और इसको लागू करने के लिए जो 2-3 चीजें आवश्यक हैं, जिस तरह के ऑप्शंस हमारा विश्वविद्यालय दूर रखो मेरे पास, वहीं रखो। हमारा जिस तरह से ये ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग सिस्टम, ये NEP 2020 कर रहा है, जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक इस्टेब्लिश कर रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को तन्मय होना पड़ेगा, हमारे अभिभावकों को भी NEP 2020 समझनी पड़ेगी। और इस संदर्भ में माई NEP बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसको विद्यार्थी तक पहुंचा रही है, इसको अभिभावकों तक भी पहुंचा रही है। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ शिक्षा केवल सरकार का दायित्व नहीं हुआ करता था, शिक्षा केवल समाज का दायित्व हुआ करता था। अभी केवल शिक्षा का दायित्व हो गया, लेकिन हमारे बहुत सारे संगठन, शिक्षा समूह के 6 संगठन इसको सामाजिक दायित्व, सामाजिक सराग को बनाने के लिए जो प्रयत्नशील है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और यही सब संगठन, जिसको हम बोलते हैं आकाश स्तंभ, ये आकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय सिविलाइजेशन की जो मूल भावना है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको जीवित करने के लिए, उसको और सुदृढ़ करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इन सब पुनीत कार्यों में NEP 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें जो चॉइसेस जो अवेलेबल हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक का जो कंसेप्ट है, ये भी रिवोल्यूशनरी चेंज जिसको हम बोलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने वाला है। इसके लिए हम सबको, और साथ में विद्यार्थी और अभिभावक तो ठीक है, इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री से भी कोऑपरेशन लेना है, हमें कॉर्पोरेट जगत से भी लेना है, और इसके साथ साथ हमें सब शिक्षकों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम गुरुकुलों के गुरु जैसे अपने जीवन का, अपने प्रोफेशन का उद्देश्य, हमारे आदर्श गुरुकुल के गुरु हों, जिससे कि हम उसी भावना के साथ NEP 2020 के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक क्रेडिट बैंक के साथ साथ अन्य सभी आयामों को जो सुधार NEP 2020 में हैं, उनको आत्मसात करें, उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, विद्यार्थियों को उनका लाभ हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने को हम साकार करें। इसी में हमारे देश का कल्याण है, और इसी में हम पुनः विश्व में विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पुनः स्थापित कर पाएंगे। और इन सब कार्यों के लिए विद्या भारती ने जो बीड़ा उठाया है, जो कार्य कर रही है, उन सब उसके सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर धन्यवाद सर, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एक्चुअली। आप जैसे कह रहे थे सर, ये NEP 2020 का अगर ये टॉपिक अगर हम ले तो ये आत्मा ऑफ NEP 2020 है। इस हम भी सहमत होते हैं सर इससे, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेजर इंपॉर्टेंस ये स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप सही कह रहे थे कि ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने में बहुत सहयोगी है। सो इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर। बहुत ही एक्सटेंसिवली आपने NEP 2020 के संदर्भ में जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो बातें हैं, वो दोनों टॉपिक्स पे, चॉइस बेस्ड हो या फिर ट्रांसफर की बात हो, क्रेडिट ट्रांसफर की, आपने रखा है सर। और वैसे ही बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आए हैं सर। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक एक करके मैं आपके सामने रखता जाऊंगा सर। जितना समय होगा उतना समय के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये सारे, क्योंकि बेसिकली आइडिया ही डिस्कशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर की होनी चाहिए। तो सर, तो आपने बहुत ही सही समय पे आपने अपने लेक्चर को स्टॉप किए हैं ताकि हम लोग क्वेश्चंस ले लें सर। मैं आपकी विथ योर काइंड परमिशन सर, आई विल टेक अप क्वेश्चंस वन बाय वन सर। जी सर पहला सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आ रहा है सर। जैसे ओरिजिनली ये आइडिया जो था कि ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जनरली CBS कोर्सेस, अभी प्रैक्टिस में ये देखने को आ रहा है कि
अपने ही डिपार्टमेंट से या फिर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड एरिया से ले रहे हैं, ये प्रैक्टिस में होता जा रहा है। लेकिन जबकि ये इंटरडिसिप्लिनरी को प्रमोट करने के लिए कहा गया था, तो कैसे इस चीज को, कैसे इसको अवेयरनेस लाएं या फिर कैसे इसको प्रैक्टिस में लाएं, ये एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है सर, टू बिगिन विद सर। ये अभी you have said very rightly that this is not only the time of multidisciplinary, interdisciplinary thinking, but also transdisciplinary thinking across the disciplines. Science with social sciences, humanities, languages, transdisciplinary. If we see the provision of University Grants Commission, eligibility for assistant professor, what it says is that masters with 55% marks in concerned, allied and relevant subjects. Concerned, allied and relevant subjects. The meaning of this is that if we are hiring assistant professor in botany, then what we are looking for is student having MSc in botany, student having MSc in biochemistry, in biotechnology, in microbiology, and all other allied and relevant subjects of botany. So this has to be really implemented. Now what is happening is that most of the universities in country, they do not define what is allied and relevant subject of X subject or Y subject. Therefore, what they do is that they recruit, in most of the universities, you go and see teachers are only from that discipline. How can we inculcate multidisciplinary thinking in the students if we do not have teachers having diverse specializations in a subject? So this is not the, in my opinion, this is not at all the issue. The only thing is the provision which is already available, that should be enforced, that should be implemented. If every university defines, depending on the requirement, multidisciplinary requirement can be at the national context, it can be at the regional context. So this, if we define this, and when we define, say, if we advertise post in biochemistry department, then at least 50% teachers should be from biochemistry background, MSc in biochemistry. The remaining 50% can be from diverse areas. So in this way, we can inculcate, students are to be exposed to different disciplines, and they can be taught different disciplines in X program only when there are mentors from different disciplines, from diverse disciplines. So in my opinion, this is not at all issue. Only we have to really commit ourselves to do the provisions already available. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. एक another question है sir. ये भी एक बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बेसिक क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि सर ये कह रहे हैं सर, पार्टिसिपेंट कह रहे हैं सर, ये जो एग्जाम जब होता है, या तो सेमेस्टर हो या अदरवाइज हो, कि एक आरोप ये है कि मेमोराइज पे बेसिस पे एग्जाम्स पास करते हैं 1-2 दिन या 4 दिन लास्ट में पढ़ करके। इससे अच्छा कि एक कोई और असेसमेंट में अगर ऑप्शंस अगर दे दें, तो क्या क्रेडिट बेस्ड सिस्टम या ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए अल्टरनेट असेसमेंट्स में क्या कोई आवश्यकता है क्या करके पूछते हैं। देखिए, आप ये विद्यार्थियों का जो कंसर्न है बहुत सही कंसर्न है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। 1982 I was in Calcutta National Library, and there I was staying in a hostel. My room partner was a German. There were double-bedded room in the hostel. Room partner was German, and when I met him first, I asked him, "What are you doing here? Which Indian university you are admitted?" He said, "No, I'm not admitted in Indian university. I'm pursuing my studies in Germany. I'm doing research, and I'm doing research in Telugu language." I asked him, "What for?"
Why you want to learn Telugu? Why you want to research in Telugu? He said that the quantum of knowledge that is available in different languages in India, we want to all study and then see how those can be applied in our country. So this is one. The other one is that the examination system. Our students, in fact, there is examination phobia, and number one, and number two, our students are taught only for writing examinations, which is very wrong paradigm. They should be taught, and that is why in between I spoke about flipped learning, I spoke about personalized learning, I spoke about your experiential learning. If, and instead of, evaluation should not be based on theoretical conceptualization of the things, but on practical aspects. And, that is why, you see, even in UG, there should be full-fledged projects, there should be full-fledged dissertations, there should be field visits, there should be excursions. Evaluation should be based on debates. On a particular topic, let group of 5 students debate, and teacher, mentor will observe. That is what was happening in Gurukul, no exam. A teacher used to give a topic, students will argue on that topic, they will discuss that topic, they will put forth their discussions, their viewpoint on particular topic, and mentor will actually observe that, notice, and then he will see what is the performance of the student. So this system, and this can be done. There is absolute freedom. See, like in Central University Punjab, format of examination is entirely different than Dr. Hari Singh University Sagar. There it is much more conceptualized and long answer based. Here it is diversity of questions, diversity of evaluation tools that are used. So there is already freedom. So the only thing is that we, the teachers, have to really really be productive and be innovative in evaluating the students. So, and it is the institutional level, and then there should be, what we are going to do here is certain percentage of autonomy, measurable tools, in terms of measurable tools, in terms of examination, we are going to give it to teacher. 70% will be institutional, 30% teacher, the way he wants to evaluate. So this way, and also, now we all know that there is one very important component that is called, student satisfaction survey. I am sure it is happening in Central University, Hyderabad. It's happening here also. So there, all these set of questions, here we are asking whether they are satisfied with the type of course content, they are satisfied with pedagogy, they are satisfied with evaluation tools. Students can always suggest evaluation tools, and that is to be taken into account, because all these things are now part and parcel of NIRF, National Institutional Ranking Framework, and also accreditation by NAAC. So students, as I said in between, that in terms of evaluation also, there should be choices available to the students, not fixed. You see, there are, say, 7 evaluation techniques, measures, and let the student opt any 4, any 5, and we will judge students only on those parameters. So this can be done. There's no, UGC or any regulatory HECI will not say that you evaluate students in this way, in this way, in this way. They will give broad guidelines, but the fine tuning to the requirement of the students can be done by the institutions. Yeah. सर धन्यवाद सर। इसी क्वेश्चन के आंसर के संदर्भ में आप जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे थे सर, इसीलिए उसका उसी को मिलता जुलता एक सवाल है, इसलिए मैं वो ले रहा हूं सर जी। जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं या फिर इवन स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस संदर्भ में ये चॉइस सिस्टम और आज के टॉपिक के संदर्भ में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करने वाली है सर, ये सवाल है। देखिए, इसमें डायरेक्ट तो जैसा मैं अभी जब एकेडमिक क्रेडिट बैंक को बता रहा था तो बोल रहा था कि
सर्टन परसेंटेज अभी फिक्स नहीं है कि 50% होगा कि 40% होगा कि 30% होगा। जैसे अभी अभी जो प्रोविजन है यूजीसी ने बनाया है कि ऑनलाइन लर्निंग का कि अप टू 40% डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कैन बी ऑनलाइन। So online is technology only. Now number two, now what is happening is that even the technology is used in making the concept simpler in the form of demonstrations, in the form of videos, in the form of several other digital form. Every course content is digital and that is what is happening in foreign universities. Everything, there are videos, there are all small modules in this digital form, everything that explains, and in ICT, in our Bharat Sarkar has also done tremendous thing. There are 24 ICT sectors applied in higher education alone, 24. And we should be all aware of that. We have SWAYAM, we have SWAYAM Prabha, we have NDL, we have National Academic Depository, we have EPG Pathshala, n number of digital things are available, and the quantum of digital methods in teaching, online methods in teaching will increase year by year. And we have to embrace this. Of course, for the time being, because our last section of students, they do not have facilities, they do not have infrastructure. Therefore, initially, it would be in blended mode. But slowly, we have to switch over to ICT, and that is possible. Of course, since we are welfare state, therefore, government can think of providing these digital materials, digital things to students so that they can really make use of ICT in teaching and learning. सर थैंक यू सो मच सर। मैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पवन गुप्ता जी का एक सवाल है सर जी। तो वो कहते हैं सर पीएचडी में क्या होगा सर? जनरल कोर्सेज के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, पीएचडी कोर्सेज में भी क्या ऐसी स्थितियां होंगी कि हम लोग क्रेडिट सिस्टम की बातें करें? और उन्हीं का एक क्वेश्चन ये है सर, अगर ये सब स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है तो फीस कहाँ पे करेगा? वो पेरेंट इंस्टीट्यूशन में करेगा कि जहां से वो ऑप्ट कर रहा है वहां करेगा सर? ये पवन गुप्ता जी का। जी हाँ पवन जी, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसा मैं बताया कि हर एक छात्र को किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए, चाहे यूजी प्रोग्राम हो, चाहे पीजी प्रोग्राम हो, चाहे पीएचडी प्रोग्राम हो। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कोई एक स्टूडेंट अपना एमएससी में एडमिशन ले लिया तो वो प्रोग्राम में एडमिशन लिया। अब यदि प्रोविजन फाइनली ये अप्रूव होता है कि 50% क्रेडिट दैट स्टूडेंट हैज टू डू फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, रिमेनिंग ही कैन डू फ्रॉम एल्सवेयर, तो रिमेनिंग क्रेडिट के लिए जो कोर्स होंगे उन कोर्स के लिए उसको, जैसे सेंट्रल पंजाब का कोई कोर्स विद्यार्थी को पसंद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के विद्यार्थी को, तो हमारे यहाँ वो कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराएगा, प्रोग्राम में नहीं। प्रोग्राम फी वो वहां देगा हैदराबाद में और कोर्स फी हमारे यहाँ देगा। तो अकॉर्डिंगली फिर हमें कोर्स फी, प्रोग्राम फी कस्टमाइज करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी चीप। आपको मालूम है डॉक्टर साहब कि जो सेम के जो मूक्स हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो सेम प्लेटफॉर्म में होते हैं, उनकी फीस 500 रुपये है। 500 रुपये इवेल्युएशन के लिए भी, कहीं किसी में 700 है। नो इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग मोर देन 1000 फॉर एंटायर कोर्स। सभी के लिए, पढ़ाने के लिए, डिजिटल लर्निंग मटेरियल देने के लिए, इवेल्युएशन के लिए, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए, सबके लिए 1000 है एक कोर्स का। सागर में मैं था, मैंने 500 रुपये फिक्स किया था मूक कोर्स के लिए। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम फी तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिग्री उसको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, लेकिन कोर्स फी वो जहां जहां करेगा वहां उसको देना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है प्रोफेसर सीसी त्रिपाठी जी से। सर आई एम रीडिंग द क्वेश्चन सर फॉर योर बेनिफिट। सर वो कहते हैं सर, टीचिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर लर्निंग एबिलिटी आर चॉइस, it is required to develop a tailor-made pedagogy by the teacher
Hence, mandatory to have low students to teacher ratio, ideally 4:1 kind of thing. How NEP is planning to address this? ये प्रोफेसर CC त्रिपाठी जी सर का क्वेश्चन है. अच्छा, लो टीचर स्टूडेंट रेशियो. त्रिपाठी जी, हम लोग उस देश के निवासी हैं जहां पर नालंदा में 20,000 तक जो रिकॉर्ड अपना बताता है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो अपना गुरुकुल था उसमें 20,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और गुरु एक था, है ना. एक गुरु 20,000 के लिए. वो कैसे करता था? वो पहले स्टूडेंट्स में से जो फास्ट लर्नर थे उनको पिकअप करके उनसे पढ़वाता था. तो जो अभी मैं बीच में एक शब्द यूज किया था कि देखिए हमारा, we are very big country, we have lot of resources, but population is our problem. So per capita availability of resources, if we take this, we may be in the bottom of ranking of all the countries in the world. और नंबर 1. नंबर 2, हम लोग कोई मैकेनिकल स्टेट नहीं है, हम वी आर लिविंग स्टेट एंड वी आर वेलफेयर मेजर स्टेट. We care for our country. Bharat cares for its people, and that is why it's giving lot of concessions, huge number of concessions, which are not there in other countries. तो इसलिए इन सब परिस्थितियों में जितना हमें इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में करना चाहिए, अभी 4.25% के करीब है, अभी NEP बोलती है 6% करीब. तो इसको करने, इससे भी काम नहीं चलेगा यदि हम कंसेप्ट थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म, जिसमें हमारा एक्सपर्टीज है, हमारे पूर्वज बिना कपड़ों के भी रहते थे जंगल में, तो जिसका हमें एक्सपर्टीज है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम सब बिना कपड़े के रहें, मिनिमम जितना हो सके उतना करें. तो हमारा जो ये कंसेप्ट है, ये हमें करना पड़ेगा. दूसरा ये देखिए कि इन सबको चॉइस और ये सब देने के लिए जिस तरह से ओपनिंग अप हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन सभी चॉइस नहीं दे रहा. यहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैंड ज्वाइन कर रहे हैं चॉइसेस देने के लिए. तो इसलिए यहां पर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आप यदि 50%, त्रिपाठी जी, किसी भी प्रोग्राम का, सभी प्रोग्राम का 50% यदि हम ऑनलाइन कर देंगे, 50% फिजिकल मोड में पढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा 50% इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो गया. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि जो ऑनलाइन का जो लाभ है वो ये भी है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, यदि किसी भी से कॉलेज में यदि क्लासरूम की संख्या कम है, यदि टीचर ऑनलाइन मोड में पढ़ाता है, 50% के लिए उसको कॉलेज आना पड़ता है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट मिटिगेट हो जाएगी. और दूसरा, यदि किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय में टीचर कम है, तो उसको 50% कोर्स दूसरी जगह से पढ़ने का ऑप्शन है. तो ये इस तरह से ऑप्शन अवेलेबल है. उसके लिए हमें थोड़ा बहुत बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह की हम सोच रहे हैं उस क्वांटम में हमें उनकी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी. सर धन्यवाद सर. मैं आपकी अनुमति से और आगे बढ़ूंगा सर. बहुत सारी क्वेश्चंस हैं सर, देखते हैं समय के इस अनुरूप हम ट्राई करते हैं. एक क्वेश्चन डॉक्टर विवेक कुमार जी की यहाँ से आया है सर. वो कहते हैं सर, ये जो ABC है, इट विल डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स. वो कहते हैं सर, डू यू फील दैट इट वुड बी ए challenge to implement practically? हाँ, इस चैलेंज को, हाउ टू कन्वर्ट दिस चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी. एनी न्यू आइडिया इज ए चैलेंज as long as we remain within the comfort zone. If we are prepared to come out of the comfort zone, and it's basic fact, if we do not embrace the changes that are happening, we all know that what is permanent is the change,
There's nothing permanent in this world. Change is inevitable, and all type of reforms. Why our learning system became stagnant is that it did not change. So only I said that two changes have happened from after independence. One is introduction of semester system, another is choice-based credit system. But I have already explained the limitations of these. So, this will happen. But, if something is good, something is to be done, it's in the national interest, then it has to be done. There's no option. So, both teachers as well as students, as well as parents, all three, we have to come out of comfort zone and we have to reorient ourselves. We have to think, NEP 2020, no single criticism as far as systemic reforms which are introduced in NEP are concerned. No criticism. No criticism in the structural reforms in NEP 2020. But whatever suspicion is about implementation. Implementation, we all know that, yes, it is not easy. So I agree that it's not easy, but it's not impossible. Because the quantum of advantage it is giving to our youth, the quantum of economic boost that it will give to the nation. And everyone, we will all love our nation, and we should love our nation, and whatever, we should be prepared to do anything. हमारे सैनिक ग्लेशियर इसमें काम करते हैं, हाई अल्टीट्यूड एरियाज में जाकर के काम करते हैं, इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं. क्या हम जो नए चेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस नहीं कर सकते हैं? दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टीचर्स आल्सो. हमें इन चेंजेस को, टीचर्स को डिटरमिन होना पड़ेगा कि हम इन चेंजेस को लागू करेंगे. और उसको करने के लिए हमने अपने यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट्स को बोला है कि आप सभी लोग इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ डिपार्टमेंट वाइज, और उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन लूंगा और फिर यूनिवर्सिटी का इम्प्लीमेंटेशन प्लान उससे इवाल्व करके और फिर उसको करूंगा. तो इस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, गवर्नमेंट विल गिव यू द पॉलिसी ओनली, government will give you the broad guidelines as to how to implement it, and government will give you the infrastructure as much as it can, and the rest depends on us. The successful implementation of this depends on teachers, on students, and on parents. Sir, dhanyawad sir. Can I go for one or two questions? Yeah, sir? Please. I am available. I have enough time. I'll give you as much as you can. सर थैंक यू सर. सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर. कहते हैं सर, देखिए सर, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिस्टम्स है, एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एंड देयर इज अ वैरायटी. एंड व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, स्टाइल्स ऑफ पेडागोजी, ये सबको देखते हुए क्या यूनिफॉर्मिटी की होना जरूरी है, या फिर कैसे ही जब कोई स्टूडेंट क्रेडिट ट्रांसफर के लिए जाता है तो उसको फायदा कैसे होगा? ये जबकि ये आप कह रहे थे कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो फिर कहीं पर क्वालिटी थोड़ा उतना नहीं होगा जितना हम सोचते हैं. तो ऐसे में क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए सर? ये सवाल है. You see, ideas can be uniform, concepts can be uniform, reforms can be uniform. Academic Bank of Credit is uniformly applicable across the nation. But when we go to implementation, why a student of Central University Hyderabad will enroll himself or herself in a course in Central University Punjab if he or she thinks that our course content is better than Central University Hyderabad. So this is another way, to mitigate the shortage of teachers, number one. And number two, it is giving option for a student to select the best course. And how a student will select is
because the learning outcome, graduate attributes of that course, all the universities have to define. So this way, all the colleges have to define graduate attributes. I talked about General Education Council. So from there, informed choices. There will be provision for students to take informed choices to select the course and then do it from where they are like. So if, say, you know, our university, say APS University Riva, if it is deficient, if some courses are not at, not having the desired quality level, then students can opt those courses from other one. When we talk about 50% of the courses have to be done in the parent organization, choice depends on the student. What are those 50% courses they will do from parent organization? Parent organization will not define that you take this from us. Choice is left to broad, open choice is given to the student to select. What are the 50% courses student will do from parent organization and what are the courses student will do from other. So this is wide open, it's wide choice available to the students. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन है सर, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है सर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में ये कहते हैं सर कि ये सब सक्सेसफुली होने के लिए, जबकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन इस चीज को 100% सक्सेसफुल करने के लिए क्रिएटिव इनोवेटिव पूल ऑफ टीचर्स की जरूरत होती है। तो इस दिशा में क्या टीचर्स हमारी इंस्टीट्यूशंस लेवल, कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के सभी इंस्टीट्यूशंस में क्या क्रिएटिव पूल ऑफ टीचर्स के लिए क्या तैयारी है और कैसी प्लानिंग हो रही है सर, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? जी बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज़्यादा टीचर्स पर डिपेंड करेगा इस सक्सेस ऑफ दिस NEP 2020। अब इसमें टीचर्स ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा वो है, प्रोविजन है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ साथ इसमें एग्जामिनेशन में कैसे रिफॉर्म्स करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। और कोर्स कंटेंट ब्रॉड गाइडलाइंस जनरल एजुकेशन काउंसिल विल प्रोवाइड। Number 2, it's very basic fact. Either we change ourselves, either we evolve ourselves, or we perish. So if we want to change, if we want to give the leverage of, the educational reforms that are in NEP 2020, and यदि हमें अपने युवाओं को इसका सही मायने में फायदा पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले हमें टीचर्स को ही इवॉल्व होना पड़ेगा। हमें टीचर्स को ही सबसे ज्यादा NEP 2020 पढ़ने की आवश्यकता है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उसके बारे में ये बिल्कुल सही है कि पेडागॉजी कोई इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब करेगा उससे बहुत ज्यादा काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि पेडागॉजी क्लासरूम में मॉनिटरिंग, क्लासरूम लेवल की मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो क्लासरूम में टीचर कौन सी पेडागॉजी अप्लाई करेगा ये टीचर पर डिपेंड करता है। तो इसी the greater amount of onus is on teachers to make this NEP 2020 successful। और टीचर्स में देखिए कैपेबिलिटी सब में होती है। मैं फिर से बोलूँगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और हमें एक अपने भारतवर्ष को एक नए देश के रूप में देखने के लिए, एक नए राष्ट्र के रूप में देखने के लिए हमें अपने आप में स्वयं रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें सबसे पहला रिफॉर्म शिक्षकों के में होना पड़ेगा, विद्यार्थियों में होना पड़ेगा, पेरेंट्स में होना पड़ेगा। बीच में रोट लर्निंग की बात आई थी, पेरेंट्स को ये छोड़ना पड़ेगा कि हायर परसेंटेज रिफ्लेक्ट द विजडम लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ये रोट लर्निंग को इंकरेज करता है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली matters, what actually matters is the understanding level, the knowledge domain of his word। So ये सब तीनों जब हम लोग मिल करके करेंगे, स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्टी होगी। जो the quantum of time and energy that is required to receive education under NEP 2020 would be manifold than what the students are spending today. Likewise, teachers, the time and energy they devote in their organizations, higher education institutions, there also they have to give time much more than what they are giving now. But
since it has win-win situation for everyone, for for students, for parents, for society, for nation. Therefore, we have to do it. There is no any other option. सर थैंक यू सर। सर मैं कह रहा था सर ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन और एक क्वेश्चन मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि डिस्कशन इतनी अच्छी तरीके से हो रही है तो बेनिफिशियरी सब हम सब होनी चाहिए सर, इसलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर। ये डॉक्टर विवेक कुमार जी से क्वेश्चन है सर। वो कहते हैं सर ये जैसे एनईपी रिकमेंड करता है कि देयर विल बी 3 और 4 इयर्स ड्यूरेशन की कोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस काइंड ऑफ थिंग, उसमें फिर डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो फिर ये जॉब मार्केट से कैसे लिंक हो जाएगा कि कल को क्या जॉब मार्केट की जो एडवर्टाइजमेंट्स होगी वो सब की मॉडिफिकेशन हो, तो फिर वो ये ऐसे डाउट्स बच्चों में आने संभावना है सर, तो इसको कैसे डील करते हैं सर? देखिए, जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। मार्केट फोर्सेस विल ऑपरेट द वे दे आर ऑपरेटिंग एंड मार्केट फोर्सेस विल बी गवर्न्ड बाय पैरामीटर्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. But the only thing is that we have to align ourselves. When we talk about that after 1 year, in 4 years UG program, if somebody exits after 1 year, he can walk away with, with certificate. So meaning that, the first year program, it would be like this, like, many institutions are now offering certificate course, diploma courses, advanced diploma courses. So the entire 4 years UG program will be remodeled in such a fashion, and it will evolve gradually from first year to second year to third year, and third year to fourth year. Now what we see is that in when a student moves from first year to second year to third year in 3 years degree program, it's not really sort of evolving in nature. Number two, and they do not terminate actually. So here, first year program would be such that whatever whatever attributes are required in certificate holder, all those attributes will be taken care in the first year. Whatever skills are required at the diploma level, all those things will be included in first year and second year program. And like that. That is why, our program, we need to remodel it, keeping in view the direction in which industry is moving and the requirement of the industry. And here, industry-academia interaction in evolving programs will be necessary. So it is, mutually, we have to involve industry, we have to involve academia, we have to involve even people from technology and, all other sectors to evolve programs like this. Sir, धन्यवाद sir. It was a wonderful experience actually. I hope all the participants, those who are here right now in Zoom conference call and also on Facebook, must have enjoyed the very lively discussion on a very important topic that is central. जैसे sir कह रहे थे कि heart of the NEP जो है इसकी successful implementation के लिए बहुत सारी बिंदुएं आइडियाज निकल के आई हैं सर आज के डिस्कशन में। आपने उसको एंटायर बैकग्राउंड को आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं कैसे हमें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर आकर के काम टीचर्स को करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स फॉर स्टूडेंट्स। जबकि अब इसको स्टूडेंट सेंट्रिक बना रहे हैं तो टीचर को अपने आप को बदलना है। ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिए हैं सर। मुझे लगता है कि हम सभी लाभान्वित हुए हैं सर आपके, एंड इसके लिए आपको मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद मैं देता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। विद दिस if you can share your cell number. सर मैं आपको कॉल करता हूं। किस डिपार्टमेंट में थे आप डॉक्टर साहब? व्हिच मैं एजुकेशन में। यू आर इन एजुकेशन सर। आपको प्रोफेसर गुप्ता वाज देयर? सर प्रोफेसर गुप्ता जी मेरे, मैं उन्हीं के अंडर ज्वाइन किया था सर जब या ही हैज रिटायर्ड नाउ। यस एंड ऑफ कोर्स वांगू वाज देयर बट ही डाइड आउट ऑफ कैंसर। यस सर, दुखद उनके साथ भी हम काम किया सर, प्रोफेसर वांगू जी। हां चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद सर। बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं विद्या भारती का बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे अपनी बात कहने के लिए ये अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। आज की कन्वीनर मोनिका जी को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सबसे पहले मैं हमारे आज के स्पीकर प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया सर हमें, और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आपने हमारी सारी ऑडियंस के बीच में रखा। मुझे विश्वास है कि उससे हमारी जितने भी एकेडमिशियंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे और उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे एनईपी के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं डॉक्टर मधुसूदन सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे सेशन को मॉडरेट किया। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये वेबिनार अभी यहीं पर समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।